Students, welcome to the class. How are you all? And this lecture is for class 11th. And today we start a new chapter and very interesting topic, that is redox. Very interesting, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में. देखिए redox. First of all, what is redox? Then redox is a combination of oxidation and reduction. Redox is a combination of oxidation and reduction. And what are they? These are two different types of chemical reactions. Oxidation reaction and reduction reaction. Hope इन reactions को आपने अपने 10th क्लास में भी पढ़ा है. यहाँ पर हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे और नए तरीके से समझेंगे. Now, so today we just discuss what is the basic difference between oxidation and reduction. So, in case of oxidation, addition of oxygen takes place. In case of reduction, removal of oxygen takes place. Now, in case of oxidation again, removal of hydrogen takes place. In case of reduction, addition of hydrogen. In case of oxidation, increase in oxidation number. Increase in oxidation number. Here, decrease in oxidation number. Decrease in oxidation number. Okay. Now, next one is removal of electronegative element. Removal of electronegative element. Now, this one is addition of electronegative element. So this is the basic difference between oxidation and reduction. What are they? If oxygen added, then it is oxidation. If hydrogen will remove, then this is oxidation. If the oxidation number gets increased, then it is oxidation. And if the electronegative element get removed in any chemical reaction from reactant to the product, then it is oxidation reaction. But in case of reduction, it is just opposite to the oxidation. That is removal of oxygen atom, addition of hydrogen atom, and addition of electronegative atom too, but decrease in oxidation number. Then first of all, what is oxidation number? What is oxidation number? Oxidation number क्या है? Then oxidation number this is the combining valency of an element in a compound. This is the combining valency of an element in a compound. Combining valency of an element
इन अ कंपाउंड। कहने का क्या मतलब है कि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग वैलेंसी क्या है, कितनी है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। ठीक है, अब देखिए, लाइक there are two compounds of phosphorus, one is PCl3 and another is PCl5. One is PCl3, another one is PCl5. In case of PCl3, phosphorus combined with 3 chlorines, and in case of PCl5, phosphorus combines with 5 chlorine. Okay, then if the valency of chlorine is -1, then oxidation states of phosphorus will be, oxidation states क्या क्या different state होंगे। ठीक है, कैसे, let us suppose phosphorus is X, chlorine is -1 and there are 3 chlorines, -1 into 3, okay, X plus -1 into 3 is equals to 0. Why 0? Because there is no any charge on this compound. इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या हो गया, फॉस्फोरस के लिए x ले लिया एंड क्लोरीन के लिए -1 into 3 because there is 3 chlorine. Then this is x minus 3 is equals to 0 and x becomes plus 3. Okay, x becomes plus 3. But in case of PCl5, if the phosphorus is x and chlorine is -1 into 5 is equals to 0 because there is no charge on PCl5, then x minus 5 is equals to 0 and so that x is equals to plus 5. Now we can see that phosphorus present in plus 3 oxidation state in case of PCl3, but in case of PCl5 the same element phosphorus present in plus 5 oxidation state. So now we can define the oxidation state or oxidation number is a type of valency which may be different in two different compounds. Like PCl3 have oxidation number of phosphorus plus 3 and in case of PCl5 it is plus 5. तो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसी वैलेंसी है जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स के केस में डिफरेंट हो सकती है। सो मैंने यहां लिखा है कंबाइनिंग वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, some more examples are there, like in case of H2SO4, there are lots of example in your NCERT book, that is question number 1 of exercise and also question number 2. In case of H2SO4, oxidation state of sulfur, we have to calculate the oxidation state of sulfur. Then for hydrogen the valency is +1, for oxygen the valency is -2, as we all know very well. Then calculate the value for sulfur. Let us suppose sulfur is equals to X. ये क्या किया हमने, सपोज कर लिया, ये हमने सपोज कर लिया है, ठीक है। नाउ +1 into 2 plus x plus -2 into 4 is equals to 0. +1 into 2 plus x plus -2 into 4 is equals to 0. This +1 is for hydrogen and this -2 is for oxygen. There is 2 hydrogen, so we have to multiply +1 from 2
and there is 4 oxygens, so we have to multiply this -2 from 4. Now this will becomes +2 plus x minus 8 is equals to 0, x minus 6 is equals to 0, and x is equals to +6. X is equals to +6. So oxidation state of sulfur in H2SO4 is +6. Same as, what is the oxidation state of sulfur in case of SO2? What is the oxidation state of sulfur in case of SO2? Then let us suppose sulfur is X and oxygen is -2 into 2 is equals to 0. Then X minus 4 is equals to 0, X becomes +4. Then the oxidation state of sulfur is +4. Now see the difference between the oxidation state of sulfur in two different compounds. This is +6, this is +4. Okay. Now take one more example. In case of SO3, what is the oxidation state of sulfur? That is X minus 2 into 3 is equals to 0. Then X minus 6 is equals to 0. X becomes +6. Always write the plus or minus sign just before the oxidation state, because इससे हमें पता लगेगा कि जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है या नेगेटिव रखता है. ठीक है. सो दिस इज +6, दिस इज +4 एंड दिस इज अगेन +6. सो सल्फर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +4, +6 एंड सो ऑन. Okay, one more example. In case of H2S, sulfur, we have to calculate for this sulfur. Then +1 for hydrogen into 2 plus x is equals to 0. Then x plus 2 is equals to 0. This x becomes -2. The x becomes -2. This is what? This is oxidation state of sulfur again. So sulfur have 3 different types of oxidation state now, that is +6, +4 and -2. So this is the basic difference between the oxidation state value of a single element when the elements combine with the other element. It depends. It always depends on the combining element that the value will be positive or negative. बोला क्या गया कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नेगेटिव में डिफर कर रहा है, किसी का +6 है, किसी का +4 है, फिर उसी का -2 भी हो गया, तो ये बात किस चीज पर डिपेंड करेगी? इस चीज पर डिपेंड करेगी कि वो कंबाइन किससे कर रहा है, कि वो कंबाइन किससे कर रहा है. देखिए यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. क्यों? क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और ऑक्सीजन क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट. सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन सल्फर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, काइंडली नोट इट डाउन. With respect to oxygen, sulfur is electropositive element. ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है. सेम एज ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर पॉजिटिव है. इन केस ऑफ SO3 देन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी आल्सो पॉजिटिव, दैट इज +6. In case of SO3 the oxidation state is +6, but in case of H2S, hydrogen which is most इलेक्ट्रोपॉजिटिव इटसेल्फ, हाइड्रोजन क्या है? अपने आप में बहुत बड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके साथ सल्फर कंबाइन कर जाता है तो क्या बनेगा? तो सल्फर खुद नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. सल्फर से बड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गया तो सल्फर नेगेटिव हो गया. अब दोनों तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो नहीं सकते हैं, कंबाइन ही नहीं कर पाएंगे. तो क्या है? अगर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गया तो सल्फर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. इन दिस केस that sulfur will be -2. देखिए बेटा, जब आप रेडॉक्स में पढ़ेंगे
तो आप चीज़ों को इस ढंग से डिफाइन करेंगे। अगर इस अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा होता या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा होता या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा होता तो मैं इसी चीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर डिफाइन करता। तो कहने का मतलब यह है कि केमिस्ट्री जो चैप्टर है, जो कंसेप्ट है, वो सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं। तो जब तक आप सब कंसेप्ट को नहीं पढ़ोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात ये, मैं बार बार कहता हूं, आज फिर से कह रहा हूं, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, इन चैप्टर्स को आप एटलीस्ट वीक में एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे इन्हीं के बेसिस पे आगे रन करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ऐसे टॉपिक्स को आप हफ्ते में एक बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए न्यू हैं। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे और क्या होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है आप लोगों पे। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CO3 2 negative. Now here is an anion. This is an anion, CO3 2 negative. Now the oxidation state of carbon is now X. The oxidation state of oxygen is -2. There are 3 oxygens, so multiply with 3 and this all equals to what? -2. Why? Because the CO3 have charge -2. अगर चार्ज कुछ है तो वो RHS में आ जाएगा। ये LHS हो गया और ये क्या हो गया? RHS। राइट हैंड साइड पर हम क्या लिखेंगे? चार्ज वैल्यू। देन x -6 is equals to -2, then x is equals to -2 plus 6, x is equals to +4. The oxidation state of carbon is +4 in CO3 2 negative. For CO2, the oxidation state of carbon is again +4. The oxidation state of carbon is again +4. But in case of CH4, C is X, hydrogen is +1 into 4 is equals to 0, X plus 4 is equals to 0, then X becomes -4. Now, one atom, carbon, have two different types of oxidation state. One is +4, another one is -4, depending on the combining species. In case of -4 oxidation state, carbon combines with hydrogen, which is what? Which is more electropositive than carbon. But in case of CO3 2 negative and CO2, carbon combines with oxygen, which is less electronegative as compared to, more electronegative as compared to carbon. ठीक है, तो कार्बन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, यहां कार्बन नेगेटिव हो गया। चलिए एक दो बड़े बड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोग NCERT से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं आपके पास, चाहे किसी भी बुक से। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नाउ देखिए, H2S2O7, दिस इज व्हाट? दिस इज ओलियम। नाम याद रखेंगे ना बेटा, ओलियम नाम है इसका, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट है। +1 we have to calculate for this sulfur, +1 into 2 plus x, and this sulfur is 2 times, then this is 2x plus -2 into 7 is equals to 0. Then +2 plus 2x minus 14 is equals to 0. Then 2x is equals to 12 and x is equals to +6 again. So both the sulfur atom have +6 oxidation state in case of H2S2O7, that is oleum. Next example is for H2S2O8.
H2SO8. Then this is plus 1 into 2, this is plus 2x, this is plus minus 2 into 8 is equals to 0. Then solve this equation, that is plus 2 plus 2x minus 16 is equals to 0, 2x is equals to 14 and x is equals to plus 7. So this is the oxidation state of sulfur in case of H2S2O8. So दिस इज ऑल अबाउट द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका कोई अंत नहीं है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितना आप सोच सको उतना कम है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे पास भेजेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। And first of all, one thing is very important, that all the oxidizing agent and reducing agent are based on the process of oxidation and reduction. The process of oxidation and reduction. The species which undergoes oxidation, is always a reducing agent. And species which undergoes reduction is always an oxidizing agent. Species which undergoes oxidation is reducing agent and species which undergoes reduction is oxidizing agent. So इस चीज को एकदम दिमाग में फिट कर लो, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, बस मेन कंसेप्ट इसका यही है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना बहुत ईजिली सीख सकते हैं। Let's discuss an example. Like PCl3 plus Cl2 will gives PCl5. So in this reaction, P is plus 3, Cl is minus 1. This Cl2 is 0, this P is plus 5 and this Cl is minus 1. ठीक है। अच्छा, ये सब कहाँ से आया? ये सारी वैल्यूज मैंने कैसे पुट कर दी, इसके लिए आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। तो P कैसा हो गया, प्लस 3 हो गया, Cl माइनस 1 होता है, यहाँ पर अगर Cl क्या है, मॉलिक्यूल है, तो Cl क्या हो गया 0, देन फिर Cl माइनस 1 होता है, 5 टाइम्स Cl है, देन P बिकम्स प्लस 5। ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट phosphorus gets oxidized. So this is oxidation process, because the oxidation number increases from plus 3 to plus 5, and chlorine gets reduced, reduction. Why? Because chlorine is 0 and it becomes minus 1. First chlorine is 0 and then it becomes minus 1. If you will compare this chlorine of PCl3 and chlorine of PCl5, then there is no change, because this is minus 1 and this is again minus 1. But if we compare Cl2, chlorine of this chlorine gas, and chlorine of this PCl5, then this will show the reduction process. Okay, so reduction is for chlorine. So chlorine is what? Chlorine is oxidizing agent. And oxidation is for phosphorus. So this is what? This is reducing agent. ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब उससे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कहीं तो जाएगा, किसी के पास तो जाके लगेगा, जिसके पास लगा उसका रिडक्शन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि
कहीं से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ था। तो जो इलेक्ट्रॉन का सप्लायर है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल एजेंट फॉर दिस रिडक्शन प्रोसेस. सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट. इन द सेम केस, chlorine undergoes reduction. It means chlorine accept an electron from outside. Chlorine accept an electron from outside. So this is responsible for the oxidation process of this phosphorus. So chlorine is oxidizing agent. बस यही कंसेप्ट है. क्लोरीन क्या है, उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और फॉस्फोरस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. S plus O2 will gives SO2. Okay, now oxidation number of this sulfur is, this is 0 because this is molecule. ठीक है, this oxygen is 0, this sulfur is +4 and this oxygen is -2. So we can easily identify the oxidation and reduction process. First of all, we have to identify the oxidation and reduction process separately to identify the oxidizing and reducing agent. Then sulfur will form +4 from 0. Then this is oxidation. This is oxidation. And oxygen will form -2 from 0. This is the decrease in oxidation state. 0 से कहाँ चला गया, -2 में. और ये क्या है, this is increase in oxidation state, becomes +4 from 0. Then this is reduction. The process of reduction is due to what? Due to oxidizing agent. Oxidizing agent. जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एंड दिस ऑक्सीडेशन इज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. सो इन दिस रिएक्शन सल्फर इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट. N2 plus 3H2 will gives 2NH3. The very popular reaction, Haber's process. Now in this case, this nitrogen is 0 and this hydrogen is also 0 because both are molecules. And in case of ammonia, this hydrogen is +1 and this nitrogen is -3. So nitrogen becomes -3 from 0. Then this is what? This is reduction reaction. This is reduction reaction, and nitrogen is oxidizing agent because this is reduction reaction. Oxidizing agent. Same as in case of H2, first this is 0 and then becomes +1. So this is oxidation reaction. This is oxidation reaction. And this is what? This is reducing agent. Reducing agent. So you can easily calculate the oxidizing agent and the reducing agent. जिसका भी oxidation हो गया वो reducing agent हो गया, जिसका reduction हो गया that becomes oxidizing agent. One more example. CuSO4 plus Zn gives ZnSO4 plus Cu. This is displacement reaction actually, in which zinc, because of its more reactivity, displays the copper from copper sulfate solution and the color changes. ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. Then this zinc is first 0 and then becomes +2 because the valency of SO4 is -2, and this copper is +2 and this will becomes 0. Then copper is what? Due to reduction process, this is oxidizing agent.
and zinc is what? Zinc is reducing agent because this undergoes oxidation. So guys, this is all about oxidizing and reducing agent. You can easily find it out. Okay, so in the next concept of redox reaction, our redox reaction can balance by using some special methods. There are two types of method. One is oxidation number method, and another one is ion electron method. So in today's lecture we discuss the ion electron method, which is very easy as well as very important for the NEET and JEE aspirants, because इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के टॉपिक से। इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। पहले हम इस टॉपिक को देखेंगे तो हमें आइडिया लगता जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बताता भी चलूँगा साथ साथ में। ओके, सो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्शन है Cr2O7 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है 2 नेगेटिव का। ये क्या है? क्रोमेट आयन है, ठीक है, इसको क्रोमेट आयन कहते हैं। जब ये रिएक्ट करता है Fe2 पॉजिटिव के साथ, देन इट विल गिव क्रोमेट आयन व्हेन रिएक्ट विथ Fe2 पॉजिटिव, देन इट विल गिव Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ओके, अब देखिए हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में है, ठीक है। ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कि वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में चल रही है या फिर बेसिक मीडियम में। तो सपोज हम इसको ले लेते हैं कि दैट रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम के जगह पर आपको H+ भी दिखाई दे सकता है। ओके, सो नाउ first of all calculate the oxidation number and identify where oxidation takes place and where reduction takes place. Then this is clear that Fe changes to +3 from +2, so the oxidation number is +2 in the reactant side and +3 in the product side. So there is increase in oxidation state, so this is oxidation. And in case of Cr2O7, the oxidation state of Cr is 2x minus 14 is equals to -2। ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ये हमने पहले सीखा हुआ है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसके लिए लेक्चर 1 देखिए, ठीक है। 2x minus 14 is equals to -2, then x is equals to +12 upon 2, that is +6। मतलब ये जो क्रोमियम है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये क्या है? +3 में है। तो +6 से +3 में चला गया, क्या हो गया जी? रिडक्शन हो गया। सो नाउ वी हैव 2 parts of our given chemical reaction, that is one is oxidation half and another one is reduction half. So write them separately, oxidation half and reduction half. Suppose this is oxidation half and इधर हम लिखेंगे reduction half, ठीक है। ऐसे करके आपको पहले लिखना पड़ेगा। 2, 4, 10 रिएक्शन जो होंगे स्टार्टिंग वाले वो थोड़े आपको टिपिकल लगेंगे, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या हुआ? Cr2O7 चेंजेस टू Cr3 पॉजिटिव, ठीक। यहाँ क्या होता है? Fe2 पॉजिटिव चेंजेस टू Fe3 पॉजिटिव। ओके, देन रूल 1 क्या है? बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है उनको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है भाई, कर लेते हैं बैलेंस। देखिए ऑक्सीजन को छोड़कर क्या है? क्रोमियम है जो कि 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट के आगे 2 लगा दिया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, ठीक है। देन रिडक्शन हाफ को बैलेंस करते हैं, तो क्या है? ये बैलेंस है पहले से, ठीक है। अब
नेक्स्ट क्या आता है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू द डिफिशियंट साइड, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 7, ठीक है, Cr2O7 लिखा हुआ है। यहां क्या करेंगे, 7H2O लगा देंगे, ठीक है। नाउ अब हाइड्रोजन भी आ गया रिएक्शन के अंदर। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस। सो हमने कितना यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 7 to the 14, तो यहां हमने 14H प्लस लगा लिए। नाउ अब क्या है, सारे एलिमेंट्स तो बैलेंस हो गए बट चार्ज बैलेंस नहीं हुआ। सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, तो चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। यहां कितना चार्ज है, 3 to the 6 पॉजिटिव, यहां 14 पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है। तो हमें इस रिएक्टेंट साइड को भी 6 पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे होगा, 14 पॉजिटिव में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 14 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव, तो 6 पॉजिटिव हो गया, यहां पर भी 6 पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, रिएक्शन रिडक्शन हाफ, ठीक है। एक्चुअली दिस वन इज रिडक्शन हाफ, सॉरी, दिस वन इज रिडक्शन हाफ एंड दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ। वो लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। चलिए देखिए, अब क्या है, Fe, ऐसे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, बस वो हेडिंग चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। यहाँ Fe है, यहाँ भी Fe है, मतलब Fe बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं, तो उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, चार्ज की बात आती है। यहाँ 2 पॉजिटिव का चार्ज है या 3 पॉजिटिव का चार्ज है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया, तो यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव का चार्ज हो गया, यहाँ भी 2 पॉजिटिव का चार्ज हो गया, यहाँ 6 पॉजिटिव का चार्ज हो गया, यहाँ भी ओवरऑल चार्ज जो है 6 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हमने जो भी इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है, जो भी हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। रिएक्टेंट वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट वाले को रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरे रिएक्शन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे रिएक्शन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, 8, ओवरऑल में लिखते हैं इसको, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। देन वहां 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 Fe2 पॉजिटिव विल गिव 8 Fe3 पॉजिटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये रिएक्टेंट साइड में है और ये वाला प्रोडक्ट साइड में है, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए और कुछ कैंसिल होने लायक है और कुछ भी कैंसिल होने लायक नहीं है, इसका ओवरऑल रिएक्शन निकाल कर लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 प्लस 8 Fe2 पॉजिटिव विल गिव 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 8 Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें काउंट भी कर लेंगे कि क्या सारे रिएक्शन बैलेंस हैं। देखो हाइड्रोजन को पहले काउंट कर लेते हैं, 14 हाइड्रोजन यहां पर है, यहां भी 14 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस है। क्रोमियम 2 है, यहां भी क्रोमियम 2 है, क्रोमियम बैलेंस है। आयरन 8 है, यहां भी आयरन 8 है, आयरन भी बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, चार्ज को देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहां 14 पॉजिटिव चार्ज है, यहां 16 पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 30। 14 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 30। यहां देखिए 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहां 24 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 24 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 30। मतलब यहां पर सब कुछ बैलेंस है। सो दिस इज अ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। और आपके मन में अगर कहीं से डाउट आ रहा है
कि भाई बैलेंस ही तो करना है, इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, सिंपल मेथड से कर लेंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं, सिंपल मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, ठीक है, सिंपल मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं जो कि बेसिक मीडियम का होगा। ये तो एसिडिक मीडियम की बात हो गई। देखिए एसिडिक और बेसिक करीब करीब दोनों सेम है, लेकिन उसमें जो चेंज आता है वो चेंज आता है H को बैलेंस करने में और चार्ज को बैलेंस करने में, ठीक है। तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे। अब देखिए आगे, चलिए तो बेसिक मीडियम का एक रिएक्शन लिख देते हैं, Cl2 प्लस OH निगेटिव विल गिव व्हाट, Cl निगेटिव प्लस ClO3 निगेटिव। अब देखिए क्या हुआ, इस Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, इस Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, और इस Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है कि Cl एक बार रिड्यूस होता है, रिडक्शन हो गया, और एक बार यही Cl जो है ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन हो गया। समझे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है कि Cl तो एक ही है, लेकिन उसी का रिडक्शन भी होता है, उसी का ऑक्सीडेशन भी होता है। मतलब क्या है, ये रिएक्शन क्या है, डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक जो है 10th क्लास से शुरू होता है। अगर आपको बेसिक का वीडियो देखना है तो आप मेरा 10th क्लास वाला वीडियो देखिए, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताया गया है। और ये क्या है, डिसप्रपोर्शनिएशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस इन द सेम रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनिएशन, ठीक है। चलो तो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ है वो क्या है, ऑक्सीडेशन जो हाफ है वो क्या है, वो है Cl2 चेंजेस टू ClO3 निगेटिव। जो रिडक्शन हाफ है वो क्या है, Cl2 चेंजेस टू Cl निगेटिव। और ये रिएक्शन क्या है, बेसिक मीडियम में है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो OH माइनस लिखा ही नहीं, ना इसमें लिखा ना उसमें लिखा। तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि OH माइनस जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, ठीक है। उसको हमें बैलेंस करते टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, उसका काम पड़ेगा आगे, और जब पड़ेगा तो आपको बताएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, ये है Cl2, ठीक है, Cl2 देखिए। अब यहां क्या है, Cl2 है, यहां Cl एक ही है, इसके आगे 2 लगा दिया, Cl2 हो गया, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन है, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहां कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन के लिए रिएक्टेंट साइड में 6H2O लगा दिया हमने प्लस, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। यहीं पर पॉइंट है, यही पॉइंट जो अब मैं करूंगा वही एसिडिक और बेसिक का मेन डिफरेंस है। तो इसको कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और लिखते रहिए। देखिए क्या है कि यहां कितने ऑक्सीजन है, 6, तो हमने 6 यहां पे वाटर लगा दिए। अब यहां 12 हाइड्रोजन आ गए, 12 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। इस 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड में क्या लगाएंगे, 12 वाटर। और जितना वाटर हाइड्रोजन डिफिशिएंट साइड में लगाएंगे टू बैलेंस द हाइड्रोजन,
सेम एज उतने ही OH निगेटिव, मतलब 12 OH निगेटिव हम रिएक्टेंट साइड में भी लगाएंगे। ये सब रिएक्टेंट है, Cl2, H2O, OH निगेटिव, ठीक है। इतना ही OH निगेटिव हम रिएक्टेंट साइड में भी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ, यहां चार्ज बैलेंस नहीं है, बाकी सब कुछ बैलेंस है, बस चार्ज बैलेंस नहीं है, ठीक है। देखो यहां कितना चार्ज है, 12 निगेटिव का, यहां ओनली 2 निगेटिव का चार्ज है। तो 12 निगेटिव को 2 निगेटिव से कैसे बैलेंस करेंगे, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो इधर भी 12 निगेटिव हो गया, इधर भी 12 निगेटिव हो गया, ठीक है। यहां क्या क्या आया हुआ है, एक साथ में लिख दूं जरा। Cl2 था और 12 वाटर था, और क्या था, सॉरी 6 वाटर था, और क्या था, 12 OH निगेटिव था, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहाँ क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब सारी चीजें यहाँ बैलेंस हो गई। सेम एज आते हैं रिडक्शन हाफ में, Cl2 है, यहाँ Cl निगेटिव है, इसके आगे 2 लगा दिया, Cl2 हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, ठीक है, ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, देन वी शुड बैलेंस ओनली द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन देयर इज 2 नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, सो वी कैन ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। देखिए अगर आपको चेक करना है कि आपका रिएक्शन सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ के जिस साइड में इलेक्ट्रॉन लगा है, मतलब कौन सा साइड है ये, प्रोडक्ट साइड, तो जाहिर सी बात है कि रिडक्शन हाफ के रिएक्टेंट साइड में ही इलेक्ट्रॉन लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइनली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सिंस देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज 10 इलेक्ट्रॉन, you can cancel out this 2 electron from 10 electron like this, 2 5 या 10 होता है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब नाउ मल्टीप्लाई the oxidation half with the electron number of reduction half means 1, multiply the reduction half with the electron number of oxidation half means 5, ठीक है। then write the equation. So the final equation is Cl2 plus 6H2O plus 12 OH negative will give 2 ClO3 negative plus 12 water plus 5 electron, ठीक है। Then reduction half is 5 electron plus 5 Cl2 will give 10 Cl negative, okay। Then cancel this 5 electron from this 5 electron because both are in opposite side, one is from reactant and another one is from product. Then H2O, there is 6 H2O and there is 12 H2O, so we can write only 6 H2O in the product side, इसको इधर भेज दिए, कैंसिल हो गया वो। अब देखिए there is 12 OH negative और बाकी सब बैलेंस है। Now overall reaction is Cl2 plus 12 OH negative plus 5 Cl2, यहां पर भी है तो इसको 6 Cl2 कर दिया हमने, 5 Cl2 और 1 Cl2 कितने हो गए, 6 Cl2 will give 2 ClO3 negative plus 10 Cl negative plus 6 molecules of water, okay। Then count the elements. First of all, chlorine is 12, then chlorine is 10 plus 2 12, oxygen is 12, then oxygen is 2 3s are 6 and 6 12, hydrogen is 12 and here hydrogen is also 12. Then count the charge, there is 12 negative charge, there is also 10 plus 2 12 negative charge, so this reaction is perfectly balanced in basic medium. So guys, this is about the balancing of redox reaction in acidic medium and basic medium from very important method, ion electron method. So watch this video again and again, practice some more questions from your NCERT book. NCERT book में बहुत सारे questions हैं, practice कीजिए उसको, और जो different side books हैं आपके पास वहाँ से practice कीजिए, नहीं तो मुझे comment कर दीजिएगा, मैं आपको question भेज दूंगा, वहाँ से practice कीजिएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आप अच्छे से लर्न कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, गुड लक, थैंक यू।
क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, देन इट गिव्स व्हाट, MnO2 प्लस व्हाट, I2, और ये क्या है, बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। ठीक है, तो फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन दिस कंपाउंड, ये क्या लिखा हुआ मैंने, MnO4 नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +7। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में अभी भी दिक्कत हो रही है तो आप रेडॉक्स का पहला वीडियो देखिए जो मैंने बनाया हुआ है, -1 I के लिए हो गया। यहां पर Mn कितना हो जाएगा, +4, और यहां I कितना हो जाएगा, 0। इस बेसिक मीडियम को हटा देते हैं क्योंकि अब हम याद रखेंगे कि वो बेसिक मीडियम का रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्या हो गया कि ये +7 है, ये +4 है, ये 0 है और ये -1 है। तो यहां पर क्या हो गया, +7 से +4 में चला गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। एंड यहां -1 से कहां गया है, 0 में, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फटाफट से रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को अलग अलग कर लेते हैं। इन केस ऑफ रिडक्शन हाफ, ठीक है, द रिएक्शन इज MnO4 नेगेटिव विल गिव्स MnO2। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ, द रिएक्शन इज व्हाट, I नेगेटिव विल गिव्स I2। ठीक है, दो रिएक्शन हो गए, यहां MnO4 नेगेटिव से MnO2 बन गया और यहां I नेगेटिव से क्या बन गया, I2। ओके, नाउ बैलेंस द एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट। सो Mn इज द एलिमेंट एंड Mn इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या बोला गया, सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो एलिमेंट हो उसके अलावा उसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ है तो उसको बैलेंस करेंगे। तो यहां क्या था, मैंगनीज था Mn, जो कि पहले से बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है, देन ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू द ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड, 2 molecules of water to the oxygen deficient side. Then 4 hydrogens are there. Then we should add 4H plus to the, sorry, this reaction is in basic medium. So in case of basic medium we have to add 4H2O in the oxygen deficient side. मैंने क्या बोला बेटा, पहले समझ लो। देखो क्या बोला कि जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, O4 है, यहां O2 है, तो हमने 2H2O लगा दिया। बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O टू द ऑक्सीजन डिफिशिएंट साइड। ओके, देन नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। देन बैलेंस हाइड्रोजन by adding water molecule to the hydrogen deficient side and also add same number of OH negative to the opposite side. ठीक है, तो यहां पे कितना है, 4 क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहां पे हम क्या ऐड करेंगे, 4H2O and we also add 4 OH negative to the opposite side. Then now it's time to balance the charge only. Then here is 4 negative charge and here is only 1 negative charge. So add 3 electrons this side. Okay, then the final equation is MnO4 plus 4H2O plus 3 electron. Okay, and here is 2H2O plus 4OH negative. Then it's time to balance the oxidation half. Balance element other than oxygen and hydrogen.
तो एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, आयोडीन, उसको हमने बैलेंस कर दिया 2 लगा के। ओके, नाउ बैलेंस द चार्ज, देन देयर इज 2 नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज 0, सो ऐड 2 इलेक्ट्रॉन टू द प्रोडक्ट साइड। एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था अगर आपको अपनी रिएक्शन चेक करनी है कि वो सही चल रही है या फिर गलत हो रही है बैलेंस, तो आप क्या देखेंगे कि अगर रिडक्शन हाफ में आपने इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड में ऐड किया है, देन इट इज कंपल्सरी दैट ऑक्सीडेशन हाफ में आप जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां ऐड करेंगे, प्रोडक्ट की साइड में। तो ऐसा ही है, मतलब हमारी रिएक्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ मल्टीप्लाई द रिडक्शन हाफ 2 फ्रॉम 2। वाई? बिकॉज रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लाई द रिडक्शन हाफ विद द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सेम वे मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन हाफ विद द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ रिडक्शन हाफ, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 वाटर प्लस 2 MnO4 नेगेटिव gives 2 MnO2 plus 4 water plus 8 OH negative. Then this 3 into 2 gives 6 I negative, 6 iodine negative gives what, 3 I2 plus 6 electron. First of all, cancel out the 6 electron of reactant side from the 6 electron of product side. Then here is 8 H2O is present, here is only 4 H2O is present. So this 4 H2O cancels this 8 H2O and form 4 H2O in the reactant side only. Then add the 2 half of reaction, that is 4 H2O plus 6 I negative plus 2 MnO4 negative will give 2 MnO2 plus 8 OH negative plus 3 I2. Now this is the balanced chemical reaction and we can also count. Hydrogen is 4 to the 8, hydrogen is 8, hydrogen balance. Iodine is 6, iodine is also 6, iodine balance. Manganese is 2, manganese is also 2, manganese is balanced. And oxygen is 4 and 8, 4 to the 8, 8 plus 4 12, and here is oxygen is 4 plus 8, that is also 12, oxygen is also balanced. Then count the charge is minus 6 and minus 2, that is minus 8, the charge is minus 8. This reaction is completely balanced now. So I hope आपको ये रिएक्शन क्लियर हुई होगी। अगर बेटा अभी भी क्लियर नहीं हुई, बस एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अभी मैं एक नया एग्जांपल दूंगा जो कि एसिडिक मीडियम में होगा, और वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 एंड इट गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस व्हाट, प्लस HSO4 नेगेटिव, HSO4 negative, and this reaction occurs in acidic medium. This reaction occurs in acidic medium. Now the charge present on this Mn is what, plus 7. ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। Present on this sulfur is what, plus 4. Present on this Mn is plus 2. And on this sulfur is plus 6. ओके, देखो यहां प्लस 6 कैसे हो गया, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो +1 + x
-8 इज इक्वल्स टू -1, x -7 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू +6. ओके, so identify the oxidation and reduction. Then Mn undergoes reduction and SO2 undergoes oxidation. ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया और मैंगनीज का क्या हो गया, रिडक्शन. देन सेपरेट द टू हाफ्स, दोनों हाफ रिएक्शन को हम सेपरेट कर लेंगे. ठीक है, इधर क्या लिख लेते हैं, रिडक्शन हाफ, that is MnO4 negative will give Mn2 positive, सिंपल सा है. देन इधर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज SO2 will give HSO4 negative, ये भी सिंपल है. ठीक है, अब देखो क्या हो गया, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. और ये सब, ये क्वेश्चन कहाँ से है बेटा, फिर से बता रहा हूँ, NCERT से. तो जितने भी CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया. देखिए ये क्या हो गया, Mn और Mn बैलेंस है, O4 है. ठीक है, यहां पर क्या है, O4H2O ऐड कर देंगे इसमें, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यहां 8 हाइड्रोजन हो गया, यहां क्या करेंगे, 8H+ ऐड करेंगे. क्यों H+ क्यों ऐड करा, वाटर क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि वाटर तब ऐड करते जब ये क्या होता, बेसिक मीडियम में होता, लेकिन ये क्या है, एसिडिक मीडियम में है. H+ ऐड करके काम चल जाएगा. ठीक है, चार्ज बैलेंस करना है, 8 पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, 1 निगेटिव चार्ज यहाँ है, तो कितना हो गया, 7 पॉजिटिव. यहाँ क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ओनली 2. देन वी हैव टू मेक this 7 positive equals to 2 positive. Then add 5 electrons. Then now this is what, balanced. Then come to the oxidation half. Sulfur balanced with sulfur already. Then oxygen is 2 and oxygen is 4. Then add 2 water to the oxygen deficient side. Now hydrogen is 4, here hydrogen only 1. Then we add 3H+ to the hydrogen deficient side. Now balance the charge, 1 negative charge, 3 positive charge, means total charge is +2. In the reactant side the charge is 0, so add 2 electron to balance the charge. Okay, now it's time to multiply. It's time to multiply the reduction half reaction from the electron number of oxidation half, that is multiply with 2. Then in the same way multiply the oxidation half reaction from the electron number of reduction, then it multiply with 5. Then now this is 16H positive plus 2 MnO4 negative plus 10 electron will give 2 Mn2 positive plus 8 H2O. Next one is 10 H2O plus 5 SO2 will give 5H SO4 negative plus 15H plus 10 electron. First of all, this 10 electron cancel out with this 10 electron. Now here is 16H plus, only 15H plus, so this 15H plus can cancel this 16H plus and only 1H plus is there. Then there is 8H2O, there is 10H2O, so this 8H2O can cancel out this 10H2O and only 2H2O will remain. Okay, now the final equation will be, फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, H प्लस, फिर क्या बचा MnO4
प्लस 2MnO4 नेगेटिव, फिर क्या बचा 5SO2 प्लस फिर क्या बचा 2H2O, 2H2O. Now it will give what? 2Mn2 positive, 2Mn2 positive, then 5HSO4 negative, 5HSO4 negative. बस इतनी चीजें बची, काउंट कर लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल Mn is 2, then Mn is also 2, Mn is balanced, then sulfur is 5, sulfur is also 5, sulfur is balanced. Now come to the oxygen. Oxygen is 8 plus 10, 18 plus 2, 20 oxygen in the reactant side, then 5 4s are 20 oxygen in the product side. Oxygen is balanced. Come to the hydrogen. 4 and 1, 5 hydrogen. 5 hydrogen. Hydrogen is also balanced. Then the last one is charge. 2 negative, 1 positive means 1 negative charge. 4 positive and 1 negative means 1 negative charge. So this reaction is now balanced chemical reaction and it is what? A redox reaction 2. Okay guys, so in this lecture, first of all, what is a galvanic cell? Then it is a device which can convert chemical energy into electrical energy. Chemical energy into electrical energy. कहने का क्या मतलब बेटा कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे. अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल कैसा दिखता है? व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल? देन a galvanic cell consists of two chambers. One is anodic chamber, another one is cathodic chamber. One is anodic chamber, another one is cathodic chamber. Then this anodic chamber have zinc anode which is negative in nature, and the cathodic chamber have copper cathode which is positive in nature. याद रखेंगे, जिंक इज नेगेटिव इन नेचर एंड कॉपर इज positive in nature. Zinc is anode and copper is cathode. This zinc anode dipped in a solution of ZnSO4 and the copper cathode dipped in a solution of CuSO4. जिंक जो है वो ZnSO4 के सॉल्यूशन में पड़ा है और जो कॉपर है वो CuSO4 के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है. ठीक है. देन कनेक्ट दिस टू with the help of a voltmeter and a key. means आपने सर्किट को पूरा किया हुआ है. then this is the external connection of the circuit. then internal connection of the circuit should be connected with the help of a inverted U-shaped tube. Internal connection of the circuit should be connected from inverted U-shaped tube, and this tube is known as salt bridge.
This tube is known as salt bridge, and this salt bridge consists of KCl or Ki along with a semi-solid material, a jelly-like material that is known as agar-agar. A jelly-like material that is known as agar-agar. This is basically an algae. So, this zinc anode and this is the copper cathode. This anode is negative and cathode is positive, and both the two half of reactions connected with the salt bridge. This salt bridge consists of a jelly-like material agar-agar with KCl or Ki, with KCl or Ki, KCl or Ki. Then this anodic chamber is known as oxidation half, and this cathodic chamber is known as reduction half. This is oxidation half and this is what? This is reduction half. Then reaction in the oxidation half is zinc will gives Zn2 positive plus 2 electron. Zinc get oxidized to zinc 2 positive, zinc double positive plus 2 electron, and ZnSO4 gets dissociated to form Zn2 positive plus SO4 2 negative. Zinc will give Zn2 positive and 2 electron. This is the oxidation process of zinc, and this ZnSO4 dissociates into Zn2 positive and SO4 2 negative. Then it is clear that production of 2 electrons takes place at the anodic point. Then this 2 electron will travel towards cathode. This 2 electron travel towards cathode. ये 2 electron cathode की तरफ move करेगा, and this is the direction of flow of electron. So from the concept of Faraday law, the direction of flow of electricity, is always in the direction of flow of electron. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड. दिस इज द question for objective. What is the direction of electricity in galvanic cell? That is cathode to anode, positive to negative. Then what is the direction of electron in a galvanic cell? Then this is negative to positive. Then in the reduction half, the reaction will be copper SO4, copper sulfate will gives copper 2 positive plus SO4 2 negative. Copper sulfate will give copper 2 positive plus SO4 2 negative, and this copper 2 positive when accept this 2 electron, then it will form Cu2 positive plus 2 electrons gives Cu. This is the process of reduction. Because oxidation state of copper becomes 0 from plus 2, and here oxidation state of zinc becomes plus 2 from 0. So this is oxidation process and this is reduction process. So in this figure now it is clear that at anode there is oxidation and at cathode there is reduction. Okay, and the loss of electron is of 2 इलेक्ट्रॉन. कितने का लॉस हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का. देन व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज? देन दिस सॉल्ट ब्रिज shows a special type of reaction, that is KCl will gives
K positive plus Cl negative. KCl will give K positive and Cl negative. Then this Cl negative pass through this salt bridge towards the anodic chamber. This Cl negative pass through the salt bridge towards the anodic chamber, and this K positive pass through the salt bridge towards the cathodic chamber. Now, what are the functions of this K positive and this Cl negative? Why this compound gets dissociated? ये टूट क्यों गया? इसका फंक्शन क्या है? आगे क्या होगा इसका? ठीक है. Then at the time of oxidation, this zinc get converted into Zn2 positive. This zinc get converted into Zn2 positive. Then since it is an anode, since this is an anode, so accumulation of large number of zinc 2 positive can slow down the activity of this galvanic cell, because this is anode and the accumulation occurs for the positive charge. Accumulation जो हो रहा है वो positive charge के लिए हो रहा है. And this cathode, since this is positive and gathering of electron makes this negative. यहां क्या है? ये निगेटिव है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या कर रहा है? इसको पॉजिटिव बना रहा है. यहां क्या है? ये पॉजिटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो कंटिन्यूअस फ्लो है, सिंस द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ Zn2 plus takes place, then this continuous flow of electron makes this cathode negative. So due to these two facts, a galvanic cell can slow down its activity. To recover these two circumstances, KCl gets dissociate and pass some Cl negative towards the anodic chamber and some K positive towards the cathodic chamber. इस समस्या को रोकने के लिए ये जो हो रही है यहाँ पर, इसके लिए क्या हुआ? KCl टूटा और क्या बना? कुछ Cl negative एनोडिक चेंबर को दिए गए और कुछ K positive किसको दिए गए? कैथोडिक चेंबर को. Then this Cl negative when react with zinc, it will form this Cl negative when react with zinc, it will form ZnCl2. Zn2 plus 2 Cl negative will form ZnCl2. And in case of K positive, 2K positive plus SO4 2 negative will gives K2SO4. आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहां तो Zn2 प्लस से रिएक्ट कराया, यहां SO4 से क्यों करा दिया, Cu से क्यों नहीं कराया? क्योंकि जितने Cu2 पॉजिटिव थे वो तो इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके पहले ही Cu बन गए. जितने Cu2 पॉजिटिव थे वो तो इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके पहले ही कॉपर बन गए. तो बचा क्या? बचा ये SO4. क्योंकि CuSO4 टूटा, उसमें दो चीजें निकली, Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव. दिस Cu2 पॉजिटिव ऑलरेडी एंगेज विद द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, देन ओनली दिस SO4 नेगेटिव रिमेन्स इन दिस बास्केट. ठीक है. सो दिस SO4 नेगेटिव व्हेन रिएक्ट विद K पॉजिटिव, देन इट विल फॉर्म पोटेशियम सल्फेट. देन फॉर्मेशन ऑफ टू स्पेशल आयंस टेक्स प्लेस. वन इज ZnCl2 zinc chloride, one is ZnCl2 and another one is potassium sulfate. But there is no function related to zinc chloride as well as potassium sulfate, because both these salts are soluble in water. ये दोनों सॉल्ट जो हैं ये क्या है? वाटर में सॉल्युबल हैं. ठीक है. तो ये दोनों सॉल्ट जैसे ही बनते हैं वैसे टूट जाते हैं. एज सुन एज दिस द फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 टेक्स प्लेस, it gets dissociated into Zn2 plus and 2Cl negative.
एंड दिस रिएक्शन कंटिन्यूज टू द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जो है ये पूरे जब तक गैल्वेनिक सेल चलेगी तब तक ये रिएक्शन जो है ये कंटिन्यू रहेगी, और सेम एज दिस फॉर्मेशन ऑफ K2SO4 विल ऑल्सो कंटिन्यू। ठीक है, तो ये क्या था, ये था गैल्वेनिक सेल का पूरा रिएक्शन कि गैल्वेनिक सेल किस तरीके से काम करती है। ठीक है, इसको देखिए और उसके बाद बुक को पढ़िए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दो मेन क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। पहला ये, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, इंटरनल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना। यहां जो इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस हुआ था उसको इसने बैलेंस किया बाय मींस ऑफ Cl नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। देन what is the reaction of oxidation half, what is the reaction of reduction half, and what is the reaction of salt bridge, and what is the working of this galvanic cell. Okay guys, thank you very much. सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए, और अगर कुछ नहीं आए तो फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स एवरीवन।